السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام CNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، روایتی شعبوں کے ساتھ غیر روایتی شعبوں میں بھی چین دن بدن ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ ای کامرس، الیکٹرک گاڑیوں، ایویشن جیسے شعبوں میں چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال بن چکی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین نے کن ممالک کے لیے ویزا فری پالیسی متعارف کروائی ہے۔ اسلام آباد میں چینیوں کے پسندیدہ کھابے اور اسلام آباد کی خوبصورتی چینی مہمانوں کی نظروں سے دکھائیں گے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی 10ویں سالگرہ پہ خصوصی رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کیا جائے گا سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کی سرحد پار ای کامرس نے نومبر میں تیزی کا رجحان برقرار رکھا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ای کامرس شعبے کی سال بسال ترقی کی شرح 76.48% رہی ہے۔ اس سال بڑی معیشتوں کے درمیان عالمی تجارت میں نمایاں کمی کے باوجود چین کی غیر ملکی تجارت نے مستحکم بنیاد اور بتدریج ترقی کی رفتار کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ چین کی سرحد پار ای کامرس نے نومبر میں تیزی کا رجحان برقرار رکھا ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ زی جیانگ کے شہر ہانگچو میں ایک ویئر ہاؤس کے کنویئر بیلٹس پر ایکسپریس پارسلز مسلسل پروسیس ہو رہے ہیں۔ اس ویئر ہاؤس کے مینیجر لونگ ہیبو کا کہنا ہے کہ پیک سیزن کے دوران ہمارے بیرون ملک آرڈرز کا حجم معمول کے مقابلے میں 10 گنا بڑھ چکا ہے۔ چوتھی سہمائی کے مضبوط تجارتی سیزن کی آمد کے ساتھ ہم اپنی گودام کی گنجائش کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی چین کے گوانگ ڈونگ صوبے کے شینزن شہر میں جنوری سے اکتوبر تک سرحد پار ای کامرس کی درآمد اور برآمد کی قیمت پچھلے سال کی مجموعی قیمت سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی سال بسال ترقی کی شرح 76.48% ہے۔ چین اپنی ڈیٹا انڈسٹری میں خاطرخواہ ترقی دیکھ رہا ہے۔ اس مناسبت سے شنگھائی میں گلوبل ڈیٹا ایکسپو کانفرنس میں ہزاروں کمپنیوں نے شرکت کی ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیٹا سے متعلق کاروبار 2023 میں 1 ملین سے زائد ہو گئے ہیں۔ چین ڈیٹا ایلیمنٹ ایکس اقدام کے نفاذ کے ذریعے مختلف سینیریوز میں اپنے بہترین ڈیٹا انفراسٹرکچر کو نئی معاشی طاقت میں تبدیل کرنے میں سہولت پیدا کرے گا۔ شنگھائی میں منعقدہ گلوبل ڈیٹا ایکو سسٹم کانفرنس 2023 کی افتتاحی تقریب کے دوران نئے افتتاح شدہ نیشنل ڈیٹا بیورو کے سربراہ لیو لیوئنگ نے کہا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اسمارٹ مینوفیکچرنگ، تجارتی گردش، نقل و حمل اور لاجسٹکس، مالیاتی خدمات اور صحت کی دیکھ بھال کے کلیدی شعبوں میں ڈیٹا کے انضمام کو آگے بڑھانے کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی تاکہ طلب کو مضبوط بنایا جا سکے، رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے اور نئی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے سپلائی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے، نئے کاروباری ماڈلز، نئی خدمات اور گورننس کے طریقے اپنائے جا سکیں۔ لیو نے کہا کہ چین ڈیٹا انڈسٹری میں خاطر خواہ ترقی کر رہا ہے۔ ڈیٹا ڈریون کاروباروں کی تعداد 2013 میں 1,10,000 سے بڑھ کر 2023 میں 1 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سال کی گلوبل ڈیٹا ایکو سسٹم کانفرنس جو مسلسل تیسرے سال منعقد ہوئی ہے، اس نے 1000 سے زیادہ گھریلو اور بین الاقوامی ڈیٹا کمپنیوں کے 10,000 سے زیادہ شرکاء کو راغب کیا ہے۔ چین نے 6 ممالک کے لیے آزمائشی یک طرفہ ویزا فری پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ ان میں فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، اسپین اور ملیشیا شامل ہیں۔ ان ممالک کے افراد بغیر ویزا لیے چین میں داخل ہو سکیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جمعے کے روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شائع ہونے والے بیان کے مطابق ملک نے فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، اسپین اور ملائیشیا کے پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے آزمائشی بنیادوں پر یک طرفہ ویزا فری پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آن لائن بیان میں کہا گیا ہے کہ 1 دسمبر 2023 سے 30 نومبر 2024 تک 6 ممالک کے آرڈنری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کاروبار، سیاحت، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے اور ٹرانزٹ کے لیے ویزا کے بغیر چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انڈسٹری سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ چین کی 6 ممالک کے لیے نئی متعارف کروائی گئی ویزا فری پالیسی زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی سیاحوں کو ملک کی طرف راغب کرے گی اور کاروباری برادریوں کے درمیان باہمی تبادلے کو فروغ دے گی۔
ملک کی آن لائن ٹریول کمپنی سی ٹرپ کا کہنا ہے کہ اس اعلان سے لوگوں کی چین آنے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ سی ٹرپ نے ملائیشیا اور جرمنی کے صارفین کی طرف سے ویب پیج ویورز میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ چائنا ٹریول گائیڈ کے ویب پیج کو ایک دن پہلے کے مقابلے میں 30% سے زیادہ ویوز ملے ہیں۔ چینی تہذیب اور چین کا راستہ ایک عالمی نقطہ نظر کے موضوع پر کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس میں چین اور دیگر ممالک سے آئے مہمانوں نے چینی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ کانفرنس میں 60 ممالک اور خطوں سے 400 سے زائد مندوبین نے شرکت کی ہے۔ حالیہ دنوں چائنا اسٹڈیز پر ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں شرکت کرنے والے بین الاقوامی اسکالرز نے چین کے بارے میں مکمل اور معروضی علم کے حصول کے لیے تعلیمی روابط کو آسان بنانے میں کانفرنس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ چینی تہذیب اور چین کا راستہ ایک عالمی نقطہ نظر کے موضوع کے تحت کانفرنس کا شنگھائی فورم، جو جمعے کو شروع ہوا، ملک کے اسٹیٹ کونسل انفارمیشن آفس اور شنگھائی میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ فورم میں ورلڈ ایسوسی ایشن فار چائنا اسٹڈیز کا آغاز ہوا اور چائنا اسٹڈیز میں نمایاں شراکت کے لیے ایوارڈز بھی دیے گئے۔ فورم میں تقریباً 60 ممالک اور خطوں سے 400 سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب اور کانفرنس کے مرکزی فورم میں چینی اور غیر ملکی مہمانوں نے چینی تہذیب کے شاندار تصورات اور منفرد خصوصیات پر تبادلہ خیال کیا۔ نئی قائم کردہ ورلڈ ایسوسی ایشن فار چائنا اسٹڈیز چینی مطالعے، موضوعاتی تحقیقی پروجیکٹس، تعلیمی سمٹس اور چائنا اسٹڈیز میں نمایاں تعلیمی کامیابیوں پر ایوارڈز کے حوالے سے کام کرے گی۔ ہانگچو میں دوسری گلوبل ڈیجیٹل ٹریڈ ایکسپو آبوتاب سے جاری ہے۔ ایکسپو کے لیے 1700 سے زائد غیر ملکی خریداروں نے اندراج بھی کروایا ہے۔ کانفرنس میں ڈیجیٹل تجارت، عالمی رسائی، مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات کا احاطہ ہوگا۔ چین ڈیجیٹل دنیا میں آئے دن نت نئی پروڈکٹس اور ٹیکنالوجیز لے کر آ رہا ہے۔ مشرقی چین کے ہانگچو شہر میں جاری دوسری گلوبل ڈیجیٹل ٹریڈ ایکسپو کے لیے 1700 سے زائد غیر ملکی خریداروں نے اندراج کروایا ہے۔ یہ ایکسپو جمعرات سے اگلے پیر تک ہانگچو میں ڈیجیٹل تجارت، عالمی رسائی کے موضوع کے تحت منعقد کی جا رہی ہے۔ ایکسپو میں 68 بین الاقوامی تنظیموں اور کاروباری انجمنوں کے ساتھ ساتھ 800 سے زیادہ کاروباری ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ فن لینڈ اور جنوبی افریقہ کو مہمان ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک خریدار مسٹر ملز نے امید ظاہر کی کہ ایکسپو کے ذریعے طبی شعبے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی جدید ترین اپلیکیشن سیکھیں گے۔ ایکسپو میں مصنوعی ذہانت کی ایک پروڈکٹ بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس نے بہت سے غیر ملکی خریداروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، جس میں انڈونیشیا سے آئے انڈسٹریز آف اے آئی کے چیئرمین تیگو پراٹیسیا بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گروپ نے انڈونیشیا میں جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، مصنوعات اور خدمات کی خریداری کے لیے اس ایکسپو میں شرکت کی ہے۔ چین میں سرحد پار ای کامرس پلیٹ فارمز کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے چین کا ایک شہر ییوو دنیا کی سپر مارکیٹ کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔ اس صنعتی شہر سے 2000 سے زائد پروڈکٹس برآمد کی جاتی ہیں۔ مشرقی چین کے صوبہ زیجیانگ میں دنیا کی سپر مارکیٹ کہلانے والے شہر ییوو میں سرحد پار ای کامرس برآمدات میں اضافے کا ایک اہم محرک بن رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں موسم سرما کے شاپنگ سیزن کے لیے سامان کی خریداری ہو چکی ہے۔ چین سے زیادہ تر مصنوعات پہلے ہی اپنی منزل تک پہنچ چکی ہیں۔ ان میں موسم سرما کے گرم لباس، کرسمس کی ڈیکوریشنز اور سینٹڈ کینڈل سمیت دیگر گھریلو سامان نے خریداروں اور غیر ملکی صارفین کی توجہ حاصل کی ہے۔ برآمد کردہ کرسمس پروڈکٹس میں سستے سامان سے لے کر ہائی اینڈ پروڈکٹس تک سبھی شامل ہیں۔ کرسمس کے سامان کے عالمی مرکز کے طور پر ییوو ہر سال یورپ اور امریکہ کو اس تہوار کے لیے 20,000 سے زیادہ مختلف قسم کی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ اگرچہ ییوو کی زیادہ تر مصنوعات بنیادی طور پر ہول سیل چینل سے بین الاقوامی خریداروں کے ذریعے گھروں تک پہنچتی ہیں، لیکن اس سال سرحد پار ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف منتقلی دیکھنے میں آئی ہے۔ چین کی ایویشن انڈسٹری مختلف شعبوں میں بہت سی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی، سویلین، کارگو کے علاوہ دیگر پروازوں کو بھی ایویشن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के एक इंस्ट्रक्टर के मुताबिक फायर फाइटिंग और इमरजेंसी रेस्क्यू से लेकर सैर तफरी तक आम हवाबाजी का वसी इत्तलाक इक्तसादी तरक्की को फरोग देगा और चीन में एक नए मुआशी तरक्की के इंजन में ताकत फराहम करेगा। माहिरीन का कहना है कि फौजी और सिविलियन मुसाफिर और कार्गो परवाज़ों के अलावा दीगर बहुत सी परवाज़ों की सरगर्मियों को जनरल एविएशन के ज़ुमरे में शामिल किया जा सकता है, जैसे वेदर इंटरवेंशन, रिमोट सेंसिंग और टेलीमेट्री, फ़्लाइट एंटरटेनमेंट, फ़्लाइट ट्रेनिंग, मुख्तसर फासले की आमदोरफ्त और एमरजेंसी रेस्क्यू, जो लोगों की ज़िंदगी और सनती और ज़राई पैदावार की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए बहुत मददगार साबित होता है। यांग, जो कि एक जनरल एविएशन इंस्ट्रक्टर हैं, उनका कहना है कि आम हवाबाजी के तैयारे अब निजी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। निजी परवाज के मैदान में बहुत से छोटे जनरल एविएशन तैयारे भी इस्तेमाल होते हैं। निजी परवाज़ों में फ़्लाइट ट्रेनिंग, पर्सनल फ़्लाइट एंटरटेनमेंट और प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल करना शामिल है। यांग का कहना है कि गुज़िश्ता दिहाई के दौरान चीन की जनरल एविएशन ने आम हवाबाजी के ऑपरेशंस और ज़ाती तफरी जैसे मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी से पेशरफ्त की है। चीनी साइंसदान खला में तैयार बिजली की ज़मीन पर मुंतकली के मिशन को कामयाब बनाने में लगे हैं। इस हवाले से चीनी साइंसदान खलाई पावर स्टेशन बना रहे हैं। ये पावर स्टेशन मदार में ज़ेर गर्दिश सैटेलाइट की चार्जिंग करेगा। चीनी साइंसदान एक ऐसे खलाई सोलर पावर स्टेशन पर काम कर रहे हैं जो तैयारशुदा बिजली को ज़मीन पर मुंतकिल कर सकेगा। इसके साथ साथ ये पावर स्टेशन मदार में गर्दिश करने वाले सैटेलाइट्स को भी चार्ज कर सकेगा। इस पावर स्टेशन का एक प्रोटोटाइप पहले ही शुमाल मगरबी चीन के सूबा शांसी के शहर शियान में तामीर किया जा चुका है। प्रोटोटाइप एक 75 मीटर ऊंचे लोहे के टावर पर मुश्तमिल है, जहां बिजली तैयार करने के बाद माइक्रोवेव्स के जरिए मुख्तलिफ आलात तक मुंतकिल की जा सकती है। बिजली की तैयारी रिवायती तरीके के मुताबिक ही की जाती है, ताहम तरसील और वसूली का तरीका तब्दील कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक प्रोटोटाइप गुज़िश्ता बरस 5 जून को अपनी जांच का इम्तिहान पास कर चुका है। ये नई टेक्नोलॉजी खला में मौजूद तनसीबात की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में बहुत मददगार साबित होगी। तारों के भारी बरकम बोझ से निजात मिलेगी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मदद हासिल होगी और तवानाई के ज़या और लागत में भी वाज़े कमी आएगी। इब्तदा में इस निज़ाम से खला में बिजली की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। बाद अज़ां खला से ज़मीन तक माइक्रोवेव एनर्जी कॉरिडोर्स कायम किए जाएंगे। चीन के इंसान बरदार खलाई जहाज शेंजू 17 के अमले के थियानगोंग खलाई स्टेशन में मुतअद्दिद तिब्बी तजुर्बात किए गए हैं। तीनों खलाबाजों ने बेवजन माहौल में होने वाली टेस्टिंग में हिस्सा भी लिया है। इन तजुर्बात का मकसद खला के मुनफरिद माहौल का भरपूर इस्तेमाल करना है। चाइना मेन्ड स्पेस एजेंसी की जानिब से जारी करदा वीडियो के मुताबिक शेंजो 17 के हमले ने चीन के थियानगोंग खलाई स्टेशन में मुतअद्दिद तिब्बी तजुर्बात किए। तीनों खला नवर्दों ने बेवजन माहौल में अपनी हरकत की बायोमैकेनिकल खुसूसियात का मुताला करने के लिए टेस्टिंग में हिस्सा लिया। इसके अलावा तीनों ने बसरी फंक्शन पर भी तहकीक की है, ताकि खलाई परवास के दौरान होने वाले बसरी नुकसानात को दरियाफ्त किया जा सके और मुतल्लिका हिफाजती मंसूबे तजवीज़ किए जा सकें। खलाई एप्लीकेशंस के एक अहम शोबे के तौर पर एरोस्पेस तिब्बी तजर्बात का मकसद इन अहम मसाइल का मुताला और हल तलाश करना है जो खला में इंसानों के तवील क़याम के दौरान पैदा हो सकते हैं। तजर्बात का मकसद खला के मुनफरिद माहौल का भरपूर इस्तेमाल करना है, ताकि मुहक्किकीन को सेहत आमा के मसाइल का मुताला करने के लिए मुनफरिद प्लेटफॉर्म और मॉडल फराहम किया जा सके। चीन ने 26 अक्टूबर को शेंजो 17 इंसान बरदार खलाई जहाज को लॉन्च किया और इस पर सवार 3 खलाबाज खलाई स्टेशन पर तकरीबन 6 माह तक मदार में रहेंगे। सिंकियांग विगोर में वाक़ई होरगस पोर्ट से रोज़ाना 1000 से ज़ायद तिजारती गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ से फल, सब्जियाँ, इलेक्ट्रिक सामान और दीगर मसनूआत दीगर खित्तों में भेजी जाती हैं। पोर्ट बेल्ट एंड रोड के मुमालिक की गुजरगाह पे वाक़या है। चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके के खॉरगोस पोर्ट कस्टम ऑफिस ने रवां बरस 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को दरामदी और बरामदी कस्टम क्लियरेंस की सहूलत फराहम की है। आजकल पोर्ट से रोज़ाना 1000 से ज़ायद तिजारती गाड़ियाँ गुजरती हैं।
जो बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक बशमूल काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तरफ जाती हैं। गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पोर्ट इंतज़ामिया ने लोगों की सहूलत के लिए जुमे के रोज़ से 24 घंटे कस्टम क्लियरेंस सर्विस शुरू कर दी है। रात के औकात में गुजरने वाली गाड़ियों की कस्टम क्लियरेंस के लिए इंटेलिजेंट चेक पॉइंट सिस्टम और वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक रवां बरस 8 जनवरी को पोर्ट के दोबारा फ़ाल होने के बाद से यहाँ रिकॉर्ड सरगर्मियाँ देखी गईं। एक रोज़ में कमर्शियल गाड़ियों की आमद 1302 तक पहुँच गई। हॉर्गोस पोर्ट से गुजरने वाली गाड़ियों में फल, सब्जियाँ, सारिफीन की मसनूआत, छोटे घरेलू आलात के अलावा टरबाइन ब्लेड्स, फॉर्क लिफ्टर, कारें, ट्रक और नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह शामिल हैं। सूबा यूनान और खुद इख्तियार तिब्बत के दरमियान रेल सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है, जिसके बाद लिजियांग और शांग्रीला का फासला महज 1 घंटा और 18 मिनट रह गया है। चीन के सूबा यूनान को चीन के तिब्बत खुद इख्तियार इलाके से जोड़ने वाली रेल सर्विस इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल हो गई। ये रेल सर्विस जनूब मगरबी चीन में मकामी तरक्की को नए मौक़े फराहम करेगी। इस रेल सर्विस से सूबा यूनान के 2 सयाहती मकामात लीजियांग और शेंग्रीला का फासला समेट कर महज 1 घंटा 18 मिनट रह गया है। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता ये 139 किलोमीटर तवील रेल ट्रैक तिब्बत के खुद इख्तियार प्रीफेक्चर डीचिंग को यूनान के दारुल हुकूमत खुनमिंग से भी जोड़ता है। रेल ट्रैक की तामीर के दौरान इलाके में मौजूद जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गईं। इसके अलावा रेल इंतज़ामिया ने काम के दौरान मकामी इलाके के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट समेत बहुत सी सहूलियात भी तामीर की। डीचिंग, जो कभी चीन के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता था, 2019 में इंतहाई गुर्बत को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। मकामी बाशिंदे खुश हैं कि नई रेल सर्विस से इलाके में मज़ीद तरक्की आएगी। मकामी मसनूआत चीन भर में मुतारिफ होंगी और यहाँ का मुतनव्वे जोग्राफिया सयाहों को राग़िब करेगा। 13वीं चाइना इंटेलिजेंट व्हीकल्स फ्यूचर मुकाबले चियांगसो में मुनक्किद हुए हैं। खुद कार ड्राइविंग के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल अव्वलीन मुकाबला है। मुकाबले का थीम हकीकी और पेचीदा ट्रैफिक माहौल में खुद कार ड्राइविंग था। 13वां चाइना इंटेलिजेंट व्हीकल्स फ्यूचर चैलेंज मुकाबला हफ्ते के रोज मशरकी चीन के सूबा जियांगसू के शहर चांगशू में मुनक्किद हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटीज़, कारोबारी इदारों और रिसर्च इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाली 20 टीमों को शामिल किया गया ताकि खुदकार ड्राइविंग की खूबी में मुसाबिकती सलाहियत का मुजाहिरा किया जा सके। ये मुकाबला 2009 में चाइना नेशनल साइंस फाउंडेशन की जानिब से मुतारिफ करवाया गया था। ये मुकाबला खुदकार ड्राइविंग के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का हामिल अव्वलीन मुकाबला है। इस साल इस मुकाबले में 2 पहलू शामिल किए गए हैं। पहला, हकीकी ट्रैफिक माहौल में खुदकार ड्राइविंग और दूसरा, पेचीदा ट्रैफिक माहौल में रद्द अमल और मवासलात का जायजा। इस इवेंट में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग गिराज में गाड़ियों की ड्राइविंग की सलाहियत को जांचने के लिए एक इवेंट भी शामिल किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुताबिक इंटेलिजेंट गाड़ियां बतदरीज एक हकीकत बन रही हैं, लिहाजा इस हवाले से तहकीक और तरक्की की हौसला अफजाई ज़रूरी है। इस हवाले से बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को पहले ही मखसूस इलाकों और माहौल में हकीकी इस्तेमाल में लागू किया जा चुका है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नई एनर्जी गाड़ियों की मार्केट बन चुका है। सुबह सिचुआन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सुपर चार्जिंग पॉइंट्स बना रहा है। सिचुआन तिब्बत हाईवे पर 116 चार्जिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। जनूब मगरबी चीन का सूबा सिचुआन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए अवामी मकामात, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में सुपर चार्जिंग पॉइंट्स तामीर कर रहा है। चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नई एनर्जी गाड़ियों की मार्केट बन चुकी है, लिहाजा मुख्तलिफ मकामात पर इस हवाले से सहूलियात की तामीर का काम भी तेजी से जारी है। चीन की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के तैयार करदा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल सुपर चार्जिंग पॉइंट्स ने कार मालिकान को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 9 मिनट से भी कम वक्त में 200 किलोमीटर के फासले तक चार्ज करने की सहूलत फराहम की है। नई सुपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी इंतहाई बुलंदी पर वाक़े इलाकों और कम दर्जा हरारत वाले मकामात पर चार्जिंग की सहूलियात को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है।
اس سال ستمبر کے آخر تک سیچوان میں کل 2,92,200 چارجنگ پوائنٹس لگائے جا چکے تھے۔ سیچوان میں ایسی قومی شاہراہ ہیں جو دیہات کو شہروں کے ساتھ ملاتی ہیں۔ یہاں چارجنگ پوائنٹس کی تعمیر کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ 3 برس میں سیچوان کو تبت سے جوڑنے والی ہائی وے 318 پر کل 116 چارجنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ چین میں فنی تربیت حاصل کرنے والے طلبہ میں چنگشنگ نیشنل یوتھ ووکیشنل سکلز مقابلہ منعقد ہوا ہے۔ مقابلوں میں شریک طلبہ 5 کیٹیگریز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ چین میں فنی تربیت حاصل کرنے والے طلباء کے مابین 18ویں چین شنگ کپ نیشنل یوتھ ووکیشنل اسکلز مقابلوں کا فائنل مرحلہ اتوار کو مشرقی چین کے صوبہ زیجیانگ کے شہر ہانگچو میں شروع ہوا۔ چنگ شنگ کپ نیشنل یوتھ ووکیشنل اسکلز مقابلوں میں شریک طلباء 5 کیٹیگریز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے، جن میں انٹیلیجنٹ ہارڈ ویئر کی تنصیب اور انڈسٹریل ویژن سسٹم کا آپریشن بھی شامل ہے۔ مقابلوں کے دوران ملک بھر سے آنے والی کمپنیاں متعدد جاب فیئرز کا انعقاد کریں گی۔ یہ جاب فیئر آن لائن اور آف لائن منعقد کیے جائیں گے۔ رواں برس ان فائنل مقابلوں کے دوران 1200 سے زائد کمپنیوں کو مدعو کیا گیا ہے، جو فنی تربیت کے حامل مقابلوں میں شریک طلباء کو 10,000 سے زیادہ ملازمتیں پیش کریں گے۔ یہ مقابلے طلباء کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے ساتھ ساتھ ملکی مارکیٹ میں کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ پہلا چنگ شنگ کپ نیشنل یوتھ ووکیشنل سکلز مقابلہ 2005 میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کی ہر قومیت کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں کی حسین شامی اور مختلف قسم کے کھانے لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم چینی باشندے بھی لذیذ پاکستانی خوابوں کے دل دادا ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاق کو صوبوں کی اکائی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اسلام آباد میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے روایتی کھانوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج ہم اسلام آباد کے ایک ایسے کھانے کے مرکز پر موجود ہیں جہاں پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہی، مگر یہاں پر چینی باشندے بھی خاصے شوق سے آتے ہیں۔ آخر اس ریسٹورنٹ میں ایسا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ کا سارا مینیو دمبے کی مختلف ڈشز پر محیط ہے۔ پٹا ٹکا، چامپے، شنواری کڑاہی، نلی کڑاہی اور بہت کچھ جو گوشت کے شوقین افراد کو دعوت توام دیتا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا نام افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے ضلع لنڈی کوتل میں بسے شنواری قبیلے سے منسوب ہے۔ عوام میں اس کی مقبولیت کی وجہ کئی دہائیاں پہلے ان شنواری کھابوں کا سستا ہونا تھا، کیونکہ افغانستان سے پاکستان لائے جانے والے دمبوں پر ٹیکس کا اطلاق نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ سستا تو نہیں رہا، مگر شنواری کھانوں کا معیار اور ذائقہ پاکستانی کھابوں میں اپنی نمایاں جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ضرور رہا ہے۔ پاکستانیوں سمیت پاکستان آنے والے چینی لوگ بھی خاصے وقت میں تیار ہونے والے ان کھابوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے چائنیز سے بات نہ ہو پانے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر وہ خواہش جاگی کہ چائنیز زبان سیکھ ہی لینی چاہیے۔ خیر، ہم نے دمبے کے گوشت کے لذیذ پکوان کھانے والے پاکستانیوں کے لطف میں حائل ہونے کی کوشش کی
और उनसे इन ख्वाबों को तरजीह देने की वजह भी दरियाफ्त की। हम अभी चिकवाल से इधर आए हैं, ठीक है, स्पेशल खाना खाने के लिए। ये 5 दोस्त हैं, इसका टेस्ट अपना है जिसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। सर ये चाम्स टिक्का वो बाहर से नहीं ना मिलते दुम्बे के, वो हमारे शहरों में मसल साहिवाल है और दूसरे एरिया है पंजाब के, वहाँ पे दुम्बा नहीं है, तो वो बकरा वगैरह है। इधर दुम्बे के स्पेशल वो चर्बी वाला जब वो टेस्ट है ना वो कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ आते हैं। असल में ये मीट जो है ना ये फुल प्रोटीन से फुल है, उसका नुकसान भी कोई नहीं है, ऑयल नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, फ्रेश गोश्त से बनता है। तो मेरे ख्याल में फार्मर आए या कोई भी आए उसके लिए सेहतमंद खुराक है। जब भी हमारी अच्छी गैदरिंग होती है, अच्छे दोस्तों के साथ गैदरिंग होती है, हम इसी रेस्टोरेंट को चूज़ करते हैं। उसकी ख़ास वजूहात है। इसको हम सिर्फ फ़ोन पे बता देते हैं कि भाईजान ये डिश आपने ये इतने केजीज आपने तैयार करने हैं। हम ये यहाँ आके ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस पीस से आपने काटना है। कुछ फॉरेनर सम टाइम हमारे साथ आते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, जस्ट लाइक दिस। तो ख्वाहिश होती है कि हम जब भी इस्लामाबाद में खाना खाएँ तो हम इसी रेस्टोरेंट में आके खाएँ, क्योंकि एक इसके ऑनर जो रिस्पेक्ट देते हैं, मेन चीज़ आपकी डिग्निटी, आपको रिस्पेक्ट देना चीज़ों का, ये खाना माने तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का आपका ट्रस्ट इसके साथ कायम है, जो इन्फ्लेशन है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हम इसीलिए इस रेस्टोरेंट में आते हैं। लजीज खानों और कामयाब कारोबार का सीक्रेट कोड मालूम करने के लिए इस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करना इंतहाई जरूरी था। 2014 के स्टार्ट में हमारे पास छोटा रेस्टोरेंट था, उसमें हम काम करते थे, पीछे बैक साइड पे था। लेकिन उसके बाद हमने ध्यान जरा ज्यादा दे दिया है ना, उस पर तवज्जो, मैंने खुद तवज्जो दे दी है उस पर, यार यही कस्टमर है ज्यादा खाने वाले, पकड़ लिए। फिर उसके बाद सीपैक आ गया, फिर मीडिया आ गया और सोशल मीडिया पे छा गए। चाइनीज में एक क्वालिटी है, वो एक बात है उसमें, वो जिधर भी जाए सबसे पहले खाने का पूछता है बेहतरीन खाना कहाँ से मिलता है। वैसे तो सारे पार्टनर हमारे बहुत से कंट्रीज के लोग हमारे पास है, लेकिन चाइनीज थोड़े ज्यादा है, इसलिए कि चाइनीज पाकिस्तान में ज्यादा है और वो हमारे बारबी को बहुत पसंद करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में हम थोड़ा सा देखो, हमारे जैसे रेस्टोरेंट और भी इस्लामाबाद है और हम इस्लामाबाद में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा खाना भी बेहतर। दूसरी बात है, लोग ये स्पाइसी खानों से तंग आ चुके हैं। हमारा खाना जो है ये बिल्कुल थोड़ा सा हेल्दी भी है और ज़्यादा सब मसाले वगैरह भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। गुलाब शिनवारी कहते हैं कि वो इस हद तक चाइनीज जबान बोल और समझ सकते हैं कि यहाँ आने वाले चाइनीज की तमाम हिदायत बखूबी जान लें। मजीद आसानी के लिए उन्होंने अपना एक चाइनीज नाम भी रखा है, जबकि इस रेस्टोरेंट का एक नाम सीपैक रेस्टोरेंट भी है। गुलाब शिनवारी कहते हैं कि उनके रेस्टोरेंट के टीम मेंबर्स भी अब चाइनीज जबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में रोजगार के तलाशी नौजवानों को भी मार्केट की जरूरत की निशानदही करके खुद को तैयार करना होगा। ये जो है पाकिस्तान की फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है और रहेगा। और दूसरी बात है, पाकिस्तानी ये रेस्टोरेंट से शिफ्ट से लेकर ज़रात तक हर चीज़ में जो है एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। लोगों, ये नए जनरेशन को आगे आना चाहिए। नए जनरेशन हमारे जैसे आगे आ जाए तो इंशाल्लाह बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो हमने इतने बड़े लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है, ये किसी ने हमें सिखाया नहीं है, खुद हम इधर बैठ के सीख गए। सीपैक को गेम चेंजर मंसूबा करार दिया जाता है, मगर गुलाब खान और इस्लामाबाद के दिल में वाक़े उनका खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट और इस जैसे बेशुमार बिजनेसेस जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी और सारी हैं, वो इस बात का सबूत भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो से पाकिस्तानी नौजवानों को सीपैक और उस जैसे बेशुमार मंसूबे जो पाकिस्तान में जारी हैं, उनसे मुताल्लिक बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने में ज़रूर मदद मिलेगी। इस हफ्ते भी चाइना टुडे और चाइना मीडिया ग्रुप के साथ इस्लामाबाद का खास सफर जारी रहेगा।
चीन से आए मेहमान सहाफ़ी दोस्त नूरैन ने इस्लामाबाद की गिरदोनवा की सैर की और वहाँ की हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। नूरैन ने मारकला की पहाड़ियों की सैर की। उन्होंने वहाँ क्या देखा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हम रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में गुजारते हैं, बाकी हिस्सा हम इस खुदाई हुस्न की तफलीक करते हैं। यहाँ नरम सुबह की रोशनी में हम हैरत के किनारे पर खड़े हैं, पाकिस्तान की दिलकश मंजर कशी में दाखिल होने के लिए तैयार। इस्लामाबाद की खूबसूरत सुबह है, हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। चलो लेट्स गो। गहां और किसी शहर को आप ऐसे देखते हैं जो नेचर से इतना करीब हो जैसे इस्लामाबाद। ये पहाड़ शानदार हिमालय का हिस्सा हैं जो ज़िंदगी से भरे हुए हैं। यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन मुख्तलिफ़ पौधों को उगाती है। पहाड़ों को दरख्तों, पौधों और चट्टानों से भरा हुआ हरा बिछौना पहना देती है। हुकूमत यहाँ 8 मुख्तलिफ हाइकिंग ट्रेल्स या रास्तों के ज़रिए अवाम को इस खूबसूरत कुदरत के शाहकार को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। आज हम छो फाइव पे जा रहे हैं। दिन में शायद 40 डिग्री तक गर्म हो, लेकिन यहाँ पहाड़ों में अब भी बहुत ठंडा और खुशगवार मौसम है। मेरा ख्याल है कि ये दरख्त की वजह से, देखिए मेरे पीछे ये दरख्त है, ये कई 100 साल पुराना है। इसकी वजह से मैं ठंडक महसूस कर रही हूँ। मकरा हिल्स सिर्फ ज़मीन और पहाड़ी चोटियाँ नहीं हैं, ये एक बनागाह है, शहर के हलचल और मसरूफियत से दूर एक पुरअमन बाग। यूनिवर्सिटी के वक्त मैं भी इसी तरह रेगुलरली हाइकिंग करती रहती थी अपने हम जमातों के साथ। वीकेंड पे हमारे यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है श्यांशान पहाड़। जब मौसम हिज़ा आया है, फिर ये पहाड़ सुर्ख रंग में बन गया है। फिर भी मौसम गर्मा में ये इसी तरह के सरसब्ज नज़र आता है। ये सरसब्ज खामोश बनना उन लोगों को बुरा ही है जो शहरी हलचल से थक गए हैं। ये जगह फोटोग्राफर और नेचर को पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है और जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। बैठ के तो सुकून, जी बिल्कुल, अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। हमारे हाइकिंग का सफ़र मुकम्मल हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो आइए अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। रावल लेक, शहर के दिल में बसा हुआ ये शोर शराबे से भरे शहर की जिंदगी के दरमियान एक पुरअमन झील है। ये इस्लामाबाद जो है ये सिर्फ बड़ी इमारतों का घर नहीं है, ना तो ये कोई तजारती या सियासी मामलात का मरकज़ है, बल्कि इस्लामाबाद में तो एक खूबसूरत एक आबी ज़ख़ीरा भी पाया जाता है जिसको हम रावल झील कहते हैं। जी हाँ, आसपास बहुत सारे परिंदे हैं, देखें वहाँ भी हैं, जिनमें से कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। पानी के दरमियान ये हंसी है, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी जीने का एहसास महसूस होता है। उम्मीद है कि 100 साल के बाद यहाँ के लोग भी इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ रावल लेक पे हमने एक सुकून भरा लम्हा ढूंढ लिया है। ये जगह फैमिलीज के लिए आराम और सुकून करने के लिए एक बेहतरीन जगह में तब्दील हो जाता है। यह खूबसूरत झील आसमान के रंगों को आईने की तरह अक्कासी कर रही है।
एक शहर है जो आपको अपनी हरियाली की चादर में लपेट लेता है और उसके लोगों में आपको वो गर्मजोशी मिलती है जो शहर की कुदरती कशिश को मुकम्मल करती है। यह एक कमाल सफ़र था जो लोगों, सकाफत और कुदरत के बेहतरीन तवाज़ुन की जिंदा रंगीन तस्वीर बनाता है। जिन में हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर कोई पहाड़ों को धोखा नहीं देता तो पहाड़ भी उन्हें धोखा नहीं देंगे। इंसान और कुदरत की बका बाहमी है। इंसान और कुदरत एक साथ जिंदगी गुजारते हैं और यही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाती है और यही तस्वीर मैंने यहाँ पाकिस्तान में देखी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीनी सदर शी जिनपिंग का इनकलाबी मंसूबा है। इस मंसूबे से 150 से ज़्यादा ममालिक मुंसलिक हैं। अगर हम ये कहें कि तरक्की के शाहराह ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया है तो ये गलत ना होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10वीं सालगिरह के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में सफ़र करना यह बहुत से लोगों का ख्वाब है। मुख्तलिफ मनाज़िर देखना, मुख्तलिफ सकाफ़तों को महसूस करना, मुख्तलिफ दोस्तों से मिलना, क्या हैरतअंगेज़ तजुर्बा है। लेकिन ज़्यादा लोगों को सबसे पहले इस बात की फिक्र होती है कि सफ़र बहुत तवील है जिसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। क्या एक ही दिन में दुनिया भर का सफ़र करना मुमकिन है? यहाँ शायद मुमकिन है। आइए मेरे साथ चलें। अब मैं चीन से शुरू कर रही हूँ। पहले जनूब मशरिकी एशियाई की तरफ जा रही हूँ। देखें, ये थाईलैंड का अजीम वर्षा महल है। ये कंबोडिया में एंकोर मंदिर और म्यांमार में एंकोर में शुवेदागुम पकोड़ा है और ये इंडोनेशिया में बरोबुदुर है। वाह, कितना शानदार है। हेलो, इंडोनेशिया में खुशामदीद। जी हाँ, क्या यहाँ कोई और तफरीही मकामात हैं? हाँ, आप जकार्ता जा सकते हैं और वहाँ जकार्ता बंदूक हाई स्पीड रेल पर सफ़र कर सकते हैं। ये हाई स्पीड रेल हाल ही में शुरू की गई है और ये जनूब मशरकी एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है और अब मुफ्त तज़किरात की सहूलत पेश कर रही है। ज़बरदस्त। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबा है ना? सही है प्यारे दोस्त, ये मंसूबा न सिर्फ हमारी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि 50,000 से ज़्यादा मुलाजिमतें भी पेश कर रही है। वाह, अच्छी बात है। मेरा भाई ही इस हाई स्पीड रेल पर काम करने वाला एक टेक्नीशियन है। ट्रांस-एशियन रेलवे, जिसमें इंडोनेशिया के जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेलवे शामिल है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और जनूब मशरिकी एशिया के दीगर ममालिक को आपस में जोड़ती है। यहाँ के मनाजिर और सकाफत बहुत खूबसूरत हैं। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ आएंगे। अब हम मगरिब की जानिब चलते हैं, एशिया के वस्त में आते हैं। वाह, ये शाही किला लाहौर है जो मुग़ल फ़न तामीर का शाहकार है। ये बाबर के खंडरात का दायरा है जो 4000 साल पहले की कदीम तहजीबों में से एक थी। वाह, ये परसेपोलिस के महल के खंडरात है जो उस वक़्त का सबसे शानदार महल था, लेकिन बाद में जलकर खाकिस्ता हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि जो महल उस ज़माने में इतना शानदार था, अब सिर्फ इसे इस तरफ देखा जा सकता है। हेलो, ईरान में खुशामदीद। क्या आप चीनी से हैं? जी हाँ, अगरचे परसों से इसके खंडरात मर चुके हैं, लेकिन मैं कोई तस्वीर कर सकती हूँ कि उस वक़्त ये सल्तनत कितनी ताकतवर थी। जी बिल्कुल, इस किस्म के आर्मी सकाफती विरासत की अच्छी तरह से महफूज करने की ज़रूरत है और उसे दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सकाफती आसार की हिफाजत और बहाली जिनकी एक अहम ताकत है,
उज़्बेकिस्तान की कदीम शहर हिवार बेल्ट एंड रोड के मंसूबे से दोबारा जिंदा किया गया है। हाँ, मैंने उसकी सालगिरह की तकरीब देखी, बहुत हैरत अंगेज थी और मैंने उस ज़माने में उस कदीम शहर की खुशहाली भी देखी थी। मुझे वाकई उम्मीद है कि एक दिन इस परसेपोलिस पैलेस दोबारा उसकी असल हालत में नज़र आएगा। जी हाँ। गुज़िश्ता 10 साल में चीन ने 33 मुश्तरका आसार करीमात के मंसूबों को अंजाम देने के लिए बेल्ट एंड रोड में शिरकत 17 ममालिक के साथ तावन किया है और तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में तावन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दिया है। किला लाहौर गेट आलमगीरी दरवाजे का ये मॉडल बीजिंग वर्ल्ड पार्क में एक नया इजाफा है। रवां साल चीन और पाकिस्तान सेहत का साल मना रहे हैं। जब चीनी दोस्त ये शानदार मॉडल देखेंगे तो यकीनन वो हकीकी किला देखने के लिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे। एशिया के जरिए सफ़र करने के बाद हम अफ्रीका पहुंचते हैं। ये मिस्र है और यहाँ बेशुमार सकाफती यादगारें मौजूद हैं, जिनमें एहराम गेज़ा, अबू सिम्बेल, कराक मंदिर, एक्सकंदरिया लाइट हाउस शामिल हैं। ओह, ये फ़िरौन है ना? मैं इसके साथ तस्वीर लूँगी। हाय, आप यकीनी चाइनीज दोस्त हैं। जी हाँ, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? हाँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत से चाइनीज दोस्त तामीरात में हमारी मदद के लिए मिस्र आते हैं। हम अक्सर गपशप करते हैं, इसीलिए हम कुछ न कुछ चाइनीज ज़बान भी समझते हैं और हमारे यहाँ बहुत से लोग चाइनीज ज़बान सीखने के लिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी जाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या तामीराती मंसूबे हैं? हाँ, यहाँ सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा है न्यू काहिरा प्रोजेक्ट है। ये हमारा नया दारुल-ए-हुकूमत है जो सहरा में वाक़ है। ये बिल्कुल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन और तामीर किया गया है। मुस्तकबिल में ये एक स्मार्ट शहर बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी तरक्की की करीब है और चीन बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक को सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डे जैसे जदीद नकलो हमल के निज़ाम की तामीर में मदद कर रहा है ताकि हितों के माबैन इक़्तिसादी, तजारती और सकाफती तबादलों को मजबूत बनाया जा सके। अब शुमार की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ। पासपोर्ट पर से गुजरने के बाद हम यूरोप के गेटवे तुर्की पहुंचे। देखें, ये यूनानी अफसानवी का किरदार ट्रोजन हॉर्स है। ये यूनान के एथेंस का एक्रोपोलिस है। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई तारुफ है? कहा जाता है कि देवी एथेनिया की मदद से यूनानियों ने ट्रोजन हॉर्स को डिज़ाइन किया और मशहूर ट्रोजन जंग जीत ली। हेलो जिनी दोस्त, आखिरकार आप यहाँ आई हैं। खुश आमदीद। हाँ, शुक्रिया। आप दोनों बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है। क्या वजह है? क्या आपको याद नहीं, रवां साल की फरवरी में दरकिया में 2 शदीद ज़िलज़िले आए हैं। उस वक़्त चीन ने हमें बहुत मदद फराहम की है। चीन की सरमायाकारी से कायम करने वाला हमदरू प्लांट वाहिद पावर प्लांट बन गया जो किसी तादील के बगैर काम करता है। वाह, ये वाकई ज़हमतों के दरमियान एक नेमत है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे का शुक्रिया। जी हाँ, चीन ने सब्ज़ तवानाई पैदा करने के लिए यूनान में 3 विंड पावर प्रोजेक्ट में भी सरमायाकारी की है और यूनान के जंगलात में आतिश ज़दगी के दौरान चीनी और यूनानी टीमों में एक साथ मिलकर काम किया और कामयाबी से आग पर काबू पाया और ये तो ज़रूरत वक्त में हकीकी दोस्ती की निशानी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चीनी कंपनियां मुतादिद ममालिक में पुराने एनर्जी पावर प्लांट्स की अपग्रेडेशन में मदद करती हैं।
ज़्यादा अहम बात यह है कि चीन की जानिब से काबिल जदीद तवानाई में नए ताउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। साफ तवानाई ने इंसानी बकाए बाहमी के लिए माहौल को मजीद साजगार बना दिया है। पिछले 10 साल में 151 ममालिक और 35 बैनुल-अक़वामी तंजीमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुकी हैं। इस मंसूबे ने तकरीबन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स की मजमूई सरमायाकारी और 3000 से ज़्यादा ताउन के मंसूबों को आगे बढ़ाया है। 4,20,000 मुलाज़मतें पैदा की हैं और तकरीबन 40 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद की है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।